And then what did she say? She said this now, that's how she is. With who? Who was she there with? Really, what was she wearing? I knew it. Excuse me. Ushna, we're rolling. And then, huh? We're live. 1 second. And then? Ushna, we're rolling in. आज का टॉपिक ही गॉसिप पे है. And then? नहीं गॉसिप करनी नहीं है. आज के शो का टॉपिक गॉसिप है. And we are on record. Oh. Listen, I gotta go. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You're here at After Hours with me, Ushna Shah. ये जो हमारा शो है ना आफ्टर आवर्स, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें हम गॉसिप नहीं करते, मसाला नहीं बेचते, लेकिन हम इवॉल्व गॉसिप से हुए हैं. शो नहीं, इंसान. मैं इसकी साइंस भी बताती हूँ क्योंकि मैं साइंस बताती रहती हूँ. अर्ली ह्यूमंस जो होते थे सर्वाइवल के लिए गॉसिप करते थे क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कम्युनिकेट करने का. सेलफोन्स वगैरह तो होते नहीं थे. सो वी यूज्ड टू रिलाई ऑन गॉसिप. Cut to thousands of years later and we still gossip. हमारा ब्रेन जो है वो वायर्ड है और वो गॉसिप की तरफ ही जाता है. कोई अक्लमंद बात हो रही हो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन गॉसिप हो रहा हो that's always spicy and interesting. लेकिन गॉसिप जो है अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए नहीं है, अब एक न्यूसेंस है. अब लोगों की हेल्प नहीं करता बल्कि तकलीफ पहुंचाता है और हमें भी थोड़ा छोटा कर देता है. Eleanor Roosevelt said that great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people. Acha, enough gossip about gossip. Let's talk about our guest tonight. She is so special to me. She's one of the most beautiful women in the industry. लेकिन उनकी सूरत से ज़्यादा उनकी सीरत हसीन है, हालांकि वो इतनी खूबसूरत हैं. She's one of the most brilliant actresses, an incredible human being, a very close friend of mine, और हाँ हम भी कभी आपस में थोड़ा बहुत gossip कर लेते हैं. Please help me welcome Sonia Hussain. Hello. Hello. You're on my show. I'm so happy. I'm so happy. Thank you, You so look much. lovely. So do you, as always. Please have a seat. Thank you. Sonia's on my show. So happy. Welcome to my show, Sonia. Thank you, love. People don't know this, but we are very close. You're a very, very I think close सभी friend को of mine. पता है नहीं? सबको पता है. चलो अब reinstate हो गया. अब audience को और पता चल गया that I'm so excited to have you. लेकिन आज मैं जरा तमीज़ की बातें करूँगी क्योंकि on air जा रही हैं. हाँ, but I was actually going through all the photos Yeah. जो last year थी, पता नहीं उससे पहले वाले उस पे थी, तो I saw this photo जिसमें you were all dolled up, bridal एक outfit पहना हुआ है और मैं ऐसे ना मेरा मुंह खुला हुआ है और मैं ऐसे देख रही हूँ उसे, मतलब मैं शायद बहुत मेरी शादी की थी. तुम्हारी शादी की थी. Oh my God! You Yes. remember? Yes. और मैं वो पता नहीं किस तरह से उठ के, because you were constantly I calling was me. calling you and I was like, where are you? और Get मेरे here. बाल ऐसे जुड़ा बंधा है और मैं ऐसी मासी लग रही हूँ उसके अंदर, बट वो बहुत आप ही मासी खूबसूरत, लग नहीं सकती. but आप- बहुत अच्छी थी. You always look so amazing, but thank you. That was a special memory. Yeah. अरे Sonia, I want to know about your childhood. आप industry family से नहीं हैं. Your family was outside the industry. Where did you grow up? In Karachi? In Karachi, we all are Karachi based. In fact, मेरी अम्मी अबू भी कराची से ही हैं. ददियाल साइड is from India, जो लखनऊ साइड से है हमारे अबू की, और अम्मी साइड जो है वो थोड़ी दिल्ली की है, तो दिल्ली और लखनऊ का थोड़ा मिक्सचर है. So you're Urdu speaking. We are Urdu तो speaking. घर में खाना बड़ा अच्छा बनता होगा. खाना दिल्ली एंड लखनऊ अच्छा बनता है, हाँ, लेकिन मैंने सुना है ज़्यादा अच्छा खाना आई थिंक हैदराबादी जो हैदराबाद होते हैं का उनके आता है। बहुत अच्छा खाना बनता है क्योंकि उनके स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा बनता है. हमारे यहाँ बहुत स्पाइसी उस तरह से नहीं अच्छा. बनता. नहीं, I like my food spicy. बिरयानी के अलावा बाकी सारी चीज़ें थोड़ी यार, कम उसने अभी स्पाइसी. तक मुझे अपने घर की बिरयानी नहीं खिलाई. उष्णा तो This is कहने so की wrong. ज़रूरत है. This is Come so over wrong. anytime. I need to come over and have You some should, you biryani. should. So you grew up in Karachi, and how old were you when you joined the industry? I was 14 or 15. You were I very guess. young. I was very no, Yeah. 14, 15, 16. I was 15, That's still 16. very young. Yeah. I was like in my 20s. Yes. That's amazing. And what was your first drama? My first drama was Daricha. दरीचे में कौन था? दरीचे में थे मेरे साथ यासिर. यासिर नवाज? नहीं, यासिर हुसैन. यासिर हमारा हुसैन. यासिर. अच्छा, यासिर हुसैन. नहीं, यासिर नवाज भी आते हैं यंग हीरोइंस के साथ. नहीं, यासिर नवाज नहीं, यासिर हुसैन का था. और अच्छी बात यह कि यासिर का भी वो आई थिंक पहला ही था. यासिर ने उससे पहले थिएटर एक्टिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी या शायद छोटे कोई कैरेक्टर्स किए हुए थे, बट उसमें हम दोनों बहुत नए थे.
और उसमें आप यासिर को पहचान भी नहीं सकेंगी, इतना दुबला था Really? वो। अच्छा, that's why you guys are very good friends also. I remember because you guys. करियर के बिल्कुल स्टार्ट से एक हाँ, साथ वो हैं, फिर हाँ। दोस्तियाँ उस लास्ट तरह करती की हैं। होती हाँ, है उस जब आप तरह। छोटे होते हैं और आपने वो स्टार्ट वही स्ट्रगल साथ पैसे मिला के खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, वो ज़माना वो भी वाला ओह ज़माना यार, था। और उस ज़माने में तो पैसे भी इतने नहीं मिलते थे। मुझे याद है मेरे करियर के शुरू में भी उस तरह से नहीं, कहाँ मिलते थे। नहीं मिलते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैंने पहला कमर्शियल किया था तो उस पे भी, क्योंकि बालों का कमर्शियल था तो मेरे काफ़ी बहुत लंबे बाल होते थे, अच्छा, तो उन्होंने उसमें वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन उसमें मुझे 100,000 मिले थे। मेरे भी फर्स्ट तो कमर्शियल पे इतने मिले। आई वेंट Happy, क्रेजी। I was so happy. Little did I know कि उससे मुझे काफी ज्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन उस लाख में भी और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बालों को वो रख के एक्सटेंशंस बनाते हैं और पता नहीं क्या करते कि उन्होंने बाल काट दिए थे? हाँ, उसने लिटरली यहाँ से पूरे बाल काटे। उसने कहा नहीं आपके छोटे बालों में शॉर्ट लेना। मैंने कहा हाँ, काट दो मैं अपने बाल से and then they made extensions out of your hair. ऐसे प्रॉब्लली करते हैं? क्योंकि मैं देख रही थी वो फेंक नहीं रहा बाल। मैंने कहा इसने डस्टबिन में क्यों नहीं फेंके, इसने इतने आराम से क्यों रखे। अब रियलाइज होता है कि अच्छा क्या होता है। Oh my God, यू नो that's जितने पैसे नहीं दियोगे उससे ज्यादा पैसे मिल गए उसको। I guess तौबा, I can't believe they did this. उन्होंने कटवा भी दिए बाल। हाँ, हाय, वैसे बर्बाद तो हो ही जाते हैं इस इंडस्ट्री में आके, कुछ रहता तो है नहीं। वैसे हाँ, रोज हीट स्टाइलिंग, you to still have your hair ये माशाल्लाह। जेनेटिक्स पे अगर आपके है तो आप चल लेते हैं। स्किन और बाल, स्किन और बाल उसी पे गुजारा We are इस वक्त probably चल रहा है। blessed this But way. yeah, हाँ। but फिर भी जो रोज हीट स्टाइलिंग और फिर बहुत dyes ज़्यादा, और but your बहुत hair looks so nice dark. It looks really really pretty. thank you. So what made you decide to be an actress? Like कोई फिल्म या कोई ड्रामा था जिसने इंस्पायर किया Kushna, बचपन में? literally it was never decided. I always wanted to be a pilot. लेकिन मेरे घर वाले What? कहते थे, घर वाले को ये था कि अच्छा नहीं प्री मेडिकल पढ़ो, तो मैं उस तरह अच्छा। I ended up being a physiologist. तो मतलब बहुत ही different. Are you a physiologist? I'm a physiologist. तो Why didn't I know this? you don't know this? I don't know this. Are you serious? Oh तो my मेरी God. मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम क्या बात कर रही हो? I'm embarrassed that I don't know this. That's It's okay. I amazing. think probably हमारी इस बारे में बात नहीं, बट हाँ बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और जोलॉजी पढ़ाकू बच्चा थी आप। पढ़ाकू थी और हाँ पढ़ाकू थी। बट पढ़ना भी काम करना भी इसलिए अलाउड हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ेंगी नहीं साथ साथ तो आई थिंक आपको अलाउ नहीं होगा जाना। इस वजह से So then you studied, साथ साथ पढ़ाई भी की, साथ साथ काम भी। पढ़ाई की। And काम कैसे शुरू किया? What brought you into it? किसी ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप नहीं, modeling एक्चुअली मैं बताती हूँ हुआ क्या। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, वो बेसिकली कहीं जा रहे थे, तो हम क्योंकि छोटे ही होते थे उस समय, नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, वो गाड़ी चोरी करके लेके जाते थे। तो वो कहते थे अच्छा चलो हम तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा देंगे, तुम हमें ले चलो। Sweet. तो उनका कहीं ऑडिशन हो रहा था, तो मैं अपने अब्बा से छुपा के गाड़ी अपने दोस्तों को लेके गई वहाँ पर, उनको ऑडिशन दिलवाया। तो मैं बैठी थी, उन्होंने कहा सभी दे रहे सोनिया आ जाओ तुम भी दे दो। तो मैंने कहा कि मैं तो किस तरह से आई हुई हूँ घर पे तुम लोग को लेके ड्राइवर बन के तुम्हारी, लेकिन नहीं आ जाओ दे दो। तो फिर मैं ऑडिशन करने क्या वहाँ कह रही पर। हो? बस you didn't even plan it. नो इट वाज नेवर प्लान। Oh wow. तो बस ऑडिशन दिया वहाँ पर। खैर उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि आप यू आर टू यंग फॉर दिस। न्यूज़ एंकर का कोई ऑडिशन था, तो लेकिन वहाँ पर कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने स्पॉट किया। उन्होंने कहा कि हाँ हमें कुछ इस तरह का फेस चाहिए, Yeah. थोड़ा सा चबी सा, उस वक्त मैं थोड़ी चबी सी भी थी, तो चाहिए और थोड़ा सा यंग कैरेक्टर है, तो आप बहुत सूटेबल हैं, आप करें। And फिर वो शुरुआत हो गई। मैं पहले तो मना कर दिया, फिर वो दे केप्ट कॉलिंग अस। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं प्रॉब्ली अभी छुट्टी, क्योंकि मैट्रिक के बाद छुट्टियाँ आती हैं 1 साल की हाँ। जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर होते। तो अब्बू ने कहा जब तक आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं होते तो आप जाओ करो, लेट्स सी कि क्या Okay. होता है। That's how I started. That's amazing. And it's so interesting because Sonia, मेरी नजर ना लग जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, knock on wood, you are absolutely beautiful. मैं हर वक्त कहती रहती हूँ, जान। and I scream it on the rooftop. She's so stunning, तुम्हारा माशाल्लाह. प्यार है। But for someone as beautiful as you, आपने उस पे कभी रिलाई नहीं किया। मैं ये ऐश्वर्या के बारे में भी कहती हूँ कि I think उसकी ब्यूटी ने उसको एज एन एक्टर अंडररेटेड रखा है, बिकॉज वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन ये चीज़ लोग बाद में देखते हैं, एंड आई फील द सेम वे फॉर यू। लेकिन अब तो पूरी दुनिया को पता है कि यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस। That's a very good question, उष्णा। बेसिकली जब मैं नई इंडस्ट्री में भी आई थी तो उस वक्त आई थिंक पहला ही कोई प्ले मैंने किया था, उसके बाद मुझे ऑफर हुआ दिस प्ले नाजो।
where Okay. I played a special kids Yeah. character. तो वो उसमें ये था कि आपको 4 टी शर्ट्स पहननी पड़ती थी, आपको बल्कि दिखाना होता था अभी, क्योंकि स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनकी टमी भी निकली होती है, थोड़ा सा बॉडी शेप में नहीं होती। तो सब ने मुझे कहा तुम पागल, तुम्हारा करियर कभी स्टार्ट हुआ है, तुम क्यों अपने आप को इस तरह से लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया शुरू में इसने, फिर उन लोगों को एहसास, फिर जो करते थे क्रिटिसाइज उनको एहसास होने लगा कि ऑब्वियसली एज एन एक्टर अगर आप वैरायटी नहीं देंगे अपने काम में तो आप एक्टर कैसे माने जाएंगे। Absolutely. So you're not a glorified model, you're an actor. Not And a serious actor. और आपने बहुत सारे ऑफ ट्रैक रोल्स किए हैं और मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई ट्राई टू डू द सेम बट यू पर्पसली बिन सो चूजी एंड आपने यू प्लेड अ ड्रग एडिक्ट, यू प्लेड पीपल विद मेंटल डिसेबिलिटीज जो आपने किया है, Schizophrenia. जिसके यू प्लेड अ गर्ल डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर आपने एक किया है जो उसमें चाइल्ड अब्यूज, somebody जिसकी तस्वीरें लीक हो गई हूँ उस तरह की एक सोशल लड़की, मीडिया अब्यूज, social media abuse. You really played these off-track characters and brought light to these people and humanized them on screen. ये बहुत एक conscious decision होता है आपका। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि पता नहीं मेरी नानी ने मुझे ब्रॉट अप, मेरी नानी ने मेरा किया है सारा, तो वो हमेशा कहती थी कि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान जब दुनिया में आया है तो वो इसीलिए आया है टू ब्रिंग अ चेंज, कि आप अपनी ज़िंदगी से किसी और की ज़िंदगी को चेंज कर सकें या आपके आने का कोई मकसद हो ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं एक्टर बनी मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मीडिया एक इतना बड़ा, एक इतना वसी एक मीडियम है It's very powerful. कि आप अगर एज अ पर्सन अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम करें तो आप एक एनजीओ के साथ काम करें ना, लेकिन मीडिया पे आप टीवी के जरिए कितने लोगों तक आवाज़ पहुंचा रहे होते हैं और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यू नो, एक मैसेज का काम है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। So आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती, आप एक चेंज लाने के लिए काम क्योंकि करती ये आई थिंक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। बहुत रिस्पॉन्सिबल बात है, बड़ी कॉन्शियस बात है, लोग इतना सोचते नहीं है। इस बात पे हम ब्रेक पे जाते हैं। We'll see you right here on After Hours. Don't go away. We're having a great conversation with Sonia Hussain. See you soon. We're back on After Hours, guys. We're gupshupping with my friend, the wonderful Sonia Hussain. Sonia, tell me, जब आप ये इतने difficult characters play कर रही होती हैं, like we were discussing, somebody with a mental disability, a drug addict, somebody who's been abused, तो आपका process क्या है इनकी skin में जाने का, and research आप क्या करती हैं इन पे? अच्छा, मैं इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्टर्स को भी दूंगी, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर अच्छे आपको किस्मत से डायरेक्टर मिल गए तो वो आपका आधा जो एक बर्डन होता है आपके शोल्डर पे से वो उठा लेते हैं। वरना अगर आपको डायरेक्टर इस तरह मिलता है जो एक्शन कट वाले होते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली मिल भी जाते हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, एज एन एक्टर भी, और फिर आप अपने को एक्टर को भी आप ही देख रहे होते हैं कि ये भी उतना ही अच्छा करें ताकि सीरियल अच्छा बने। मैंने जब स्किज़ोफ्रेनिया वाला भी जब किया था, उसमें मोहसिन भाई मेरे डायरेक्टर थे, तो उनके साथ हम रिहैब सेंटर जाते थे। अच्छा। और हम लिटरली 3 महीने तक रिहैब सेंटर गए। खैर बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेरे अंदर आ गया था कि जब मैं गेस्ट से भी बात कर रही होती थी तो अक्सर मेरी अम्मी कहती थी कि तुम यू वर लॉस्ट, तुम तो वो अक्सर कहती थी सोनिया, मतलब अजीब सा लगता है, तो तुम कहाँ हो, क्या बात करो इनसे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो चीज़ें कैच करना शुरू हो जाती हैं। Of course. तो जिस तरह से हम होमवर्क करते थे, रिहैब सेंटर्स जाते थे, इनफैक्ट जब ये डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कर रहे थे तो फारूक रंद इसके डायरेक्टर थे, और दादा भी बहुत ही ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये लोग भी बहुत हेल्प करते हैं एक्टर को, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कि वो मेंटल अब्यूज़ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किए हैं। तो मैंने एक वक्त आया था जब मैंने DSM-5 भी पढ़ी थी, जो मेडिकल में पढ़ाई जाती है। और फिर ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड भी फिजियोलॉजी से है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से भी हेल्प आउट करती हैं। तो वो पढ़ना भी होता है, फिर आप जाके एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, जाके खुद बैठते हैं उनके साथ। I'll tell you, एक स्टोरी थी, वहाँ पर मेरी एक मुझसे मिलने आती हैं, वो कहती हैं कि आपको पता है मैं जॉब करने जाती हूँ,
तो मैंने कहा अच्छा कहाँ जाती हैं? कहती मैं KFC जॉब करने जाती हूँ, 15 दिन जाती हूँ और 15 दिन मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ ना, तो इन लोगों को पता है कि मुझे इलाज कराना है, इसलिए 15 दिन। मैंने कहा आपके जॉब वाले लोग अलाउ कर देते हैं आपको? कहती हैं हाँ हाँ वो मुझे अलाउ कर देते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा अच्छा बड़ी समझदार है कि इनको समझ में आती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होती हैं, तो मुझे मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं कहा बड़ी समझदार हैं ये। खैर वो बात काफ़ी देर तक की और वो चली गई। उसके बाद डॉक्टर आती हैं, कहती हैं कि पेशेंट है हमारी और ये बहुत अरसे से अपने आप को ये रियलाइज़ करवाती हैं कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ बड़ा सप्रेस किया जाता है। उनके हस्बैंड को बड़ा सप्रेस करते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है और तुम कोई जॉब नहीं कर सकती, तो मतलब घर का भी कोई काम नहीं कर। वो इतना ज़्यादा सप्रेस्ड हो गई थी मेंटली कि उन्होंने अपनी एक और रियलिटी बना ली कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, अपने पैसे कमा सकती हूँ। और वो ऐसे से लेके घूमे, जबकि उसमें पैसे नहीं थे, उसमें कागज़ के टुकड़े थे और वो ले लेके घूमती थी। तो इस तरह की कहानियाँ होती हैं। जब आप वो कहानियाँ देखते हैं तो आप और अपने आप को एक्सपोज करना उन कहानियों से, बिकॉज आप भी फिर वल्नरेबल हो जाते हैं। कभी डिप्रेशन में गई हैं इस वजह से? हाँ मैनी टाइम सोचना, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। आप ये देखें कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस आपका कंटिन्यूसली चल रहा होता है, क्योंकि एक तो होता है ना नेचुरल, हम सैड फील कर रहे हैं अभी तो अभी हमें रोना आ रहा है, हम हंसना चाह रहे हैं तो अभी हमें हंसना आ रहा है, तो वो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर रही होती है। लेकिन व्हेन यू आर एक्टिंग और आप उस वक्त आपको व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर रियल विद ट्रूथ, एग्जैक्टली, हाँ, जब वो वाली भी नहीं होती कि आपने कुछ लगा लिया और इस तरह से, तो आप वो वाला आप अपने आप को प्रेशर देते हैं, अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं वो एक्सप्रेशन लाने में। आप बेशक खुश हो, घर से बड़ा खुश आ रहे हो, लेकिन अभी आपको ये इमेजिन करना है नहीं मेरे फादर की डेथ हुई है, ये आपको अपने आप को दिमाग में बिठाना है कि ये हकीकत है और इसमें मुझे कितना दुख होना है। तो आप उस दुख में, उस ट्रॉमा में जाते हैं जो कि असल हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। बॉडी डजंट नो दैट। Your body doesn't know that. It doesn't know. Yeah. Body obviously after effects उसके होते हैं जब आप अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस अपनी पूरी बॉडी में कर लेते हैं, तो वो आपको फिर एक ट्रॉमा की सूरत में, आपको आगे जाके एंजाइटी की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में। अच्छा तो नॉर्मल लोगों को इतना है, तो हम तो we're so crazy on another level। बड़ा ज़रूरी मुझे समीना आपस से मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी, समीना पीरज़ादा से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे बात की थी कि एक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अनवाइंड करें। यस, हर उतार दे, कपड़े की तरह पिछले कैरेक्टर को उतार दें। बिल्कुल। Tell me something. You've spoken about this, which is why I'll speak about this. It is so important to me. It's so important to me. और आपने अभी शेयर किया that you see a therapist and you talk to a therapist. Does that really help? Simply talking to a therapist, अपनी feelings को sort of analyze करना. Does that help you in your work and in your life? It does to some extent, because obviously man is a social animal. उसको जब तक वो conversation नहीं करेगा, जब तक वो बात नहीं करेगा, तब तक वो normal रह नहीं सकता। मुझे अब I don't know about you, but मैं तो अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स तक भी नहीं लेके जाती, क्योंकि वो एक अलग बर्डन होता है कि आपने अब इनको बता दिया, ट्रॉमा डंपिंग, और आप नहीं कर सकते आजकल, वो परेशान हो जाते हैं, वो अलग फिर परेशानी कि अब पेरेंट्स परेशान हो गए। तो देयर हैज़ टू बी समवन कि जिससे आप बात कर सकें। तो और उसके अलावा भी उष्णा, आई थिंक एक थर्ड पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी ज़िंदगी पे होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा बंदा जिसका आपके साथ क्लोज रिलेशन नहीं है, जो आपको अनबायस्ड तरीके से आपको आंसर करे, आपको बताए कि नहीं आप यहाँ पर गलत तरीके से ज़िंदगी को लेके चल रही हैं, आप यहाँ पर ठीक जा रही हैं, आपको ये ट्रैक पकड़ना है, ये ट्रैक आप इसलिए ले रही हैं क्योंकि आपके पास्ट के इस तरह के मसले रहे हैं, इस तरह के वूंड्स रहे हैं, जिसको आप लेके उसको अपने आप को बताने की कोशिश करें, नहीं मैं ठीक कर लूँगी, मैं सोल्यूशन निकाल लूँगी, मैं हर चीज़ बेहतर कर लूँगी। नहीं, you don't have to मिल जाता है। And you would recommend to our audience कि everyone should मेरा प्रॉब्लम ये था ना, I've always been a problem solver। मुझे बस ये कि अच्छा कोई मसला हो गया, अब आप उसको सोल्यूशन निकालें। घर में सबसे बड़ी हूँ तो सबसे ये सब आते हैं कि अच्छा सोने आप ये क्या कर रहे हैं, क्या है, तो अब हर चीज़ का ये होता है अच्छा इसका सोल्यूशन। तो मेरी ज़िंदगी में जब मसले आने लगे, जब इस तरह की चीज़ें आने लगी, जहाँ मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे हैंडल क्यों नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं इसको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ चीज़ें यू जस्ट हैव टू लेट गो, submit to God, not everything is in your hands। Exactly। और हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। So just stay content। I think ये ज़रूरी है। I absolutely agree and I feel like काफ़ी लोग जो ये देख रहे होंगे
मैं इतना मुझे कॉन्वर्सेशन पसंद है मेंटल हेल्थ थेरेपी पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज़ की तरफ पढ़ें, ख़ास तौर पे इस एज में जब हमारे हाथ में इतना कुछ है. वी हैव एक्सेस टू so much negativity, so much information. We really need to balance it out. Right. Acha, tell me, you started out ना चाहते हुए या ना जानते हुए आप इंडस्ट्री में आए, लेकिन वो लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं and they want to start to be an actor, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? उष्णा, frankly speaking, मैं बहुत सारे लोगों को, अब पता नहीं if I should say this, मगर बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस भी बना रहे होते हैं कि ओ अच्छा हमारे कॉम्प्लेक्शन का ये प्रॉब्लम है इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जाता, या हम हम किसी इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेपोटिज्म को बहुत प्रमोट किया जाता है और ये वाली सारी चीज़ें. हाँ, हमने सुनी ये वाली सारी बातें, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं, बट लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसा कुछ फेवरेटिज्म है, चलो आई एग्री टू सम एक्सटेंट, फेवरेटिज्म भी है, लेकिन अगर आपको अपना क्राफ्ट पता है, अगर आपको अपना काम आप जानते हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे कर सकती है. आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना बड़ा ज़रूरी है, रादर के ये देखना कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, मैं उसको कॉपी कर लूँ, उसकी तरह अपना एटीट्यूड कर लूँ. नहीं, एक ब्लिंकर्स जो होते हैं ना, वो आपको अपने ऑन रखने और अपने काम पे फोकस करना है. आप कभी पीछे नहीं रह सकते. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये एक फैक्टर है जो आई थिंक दुनिया की हर शोबिज़ इंडस्ट्री में लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, योर लुक्स हेल्प, ठीक है, टैलेंट हेल्प्स, ठीक है, पुश हेल्प्स, बट अल्टीमेटली ये एक ऐसा करियर है जिसमें बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और बहुत इतने लोगों की जगह है नहीं, और बहुत सारे लोगों को जगह मिल भी रही है, मिल भी रही है, स्पेशली विद सोशल मीडिया. लेकिन दिस ऑल्सो हैज़ अ लॉट टू डू विद लक एंड वी कैंट डिनाई दैट. हर कोई लकी नहीं है, लेकिन लक का भी एक हद तक हाथ है. कुछ लोग ब्लेस्ड हैं एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. मैं कई दफ़ा कंप्लेन मैंने अपने साथ की शुरू में कि मैंने एक्टिंग पे इतना जोर दिया और मैंने ये किया, बट व्हाई कैंट आई गेट टू दैट लेवल. एंड देन आई रियलाइज बिकॉज कभी कभी अल्लाह मियाँ ने किसी की किस्मत में कुछ सर्टन चीज़ें लिखी होती हैं और वो उनका चैप्टर है. हाँ, और ये आपका चैप्टर है, और ये भी एक चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. आप अपनी इंटेंशन से काम करते रहें एंड यू कीप गोइंग ऑन. यू आर ऑल्सो समबडी हुज डन अ लॉट फॉर हर फैमिली. आई सॉ अ वीडियो, और मैंने अपनी माँ को वीडियो नहीं दिखाई बिकॉज बड़ी शर्मिंदा हूँ मैं वो देख के. she's doing well, she's in Canada right now, but you bought your parents a house. माशाल्लाह, वो भी कराची जैसे महंगे शहर में, बट माशाल्लाह माशाल्लाह. What was it like जब आपने उनको घर लेके दिया? ये क्या फीलिंग थी, मुझे बताएं. ये तो इतनी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, लेकिन हाँ, अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता. इमोशनल फीलिंग थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मेरे लिए सरप्राइज था. उष्णा, इतना मुश्किल था छुपाना. आप सोचे एक एक पेपर ला के मैं यूँ छुपा रही होती थी, क्योंकि जब रजिस्ट्रार ऑफिस भी जा रहे होते थे तो उस तक मैं जब जाती मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी, क्योंकि आप एक चीज़ आपके नाम पर आ रही है और अभी आप घर लेकर आएंगे वो सारे. तो मैं वहाँ जा रही थी, तो फिर उनसे जब पेपर लेके आई थी, क्योंकि साइन तो अम्मी ने किया था उसको, लेकिन जब मैं लेके भी आ रही थी तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी. Amazing. And you put it in your mom's name? Yeah, अम्मी के नाम. मामा टीवी का चैनल बदले फौरन. Switch the channel. But no, you're such an amazing daughter, Vishna. I've seen you. I love you. Thank you so much. You're just being humble. Just tell me something about you that most people don't know. कोई ऐसी बात जो लोगों को ना पता हो. मेरे बारे में? Can you cook? I can cook. Yes. You can cook? What do you cook? I love cooking. When do you get time to cook? You're always working. No, I don't cook. But I can cook. You can cook. Like weekends पे कभी? Weekends पे या कोई गेस्ट आ रहे हुए उनके लिए कभी बना दिया. मुझे I love cooking, उष्णा. Really? It's an art. मुझे तो बहुत 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 पसंद है. देसी खाना, इटालियन खाना, चाइनीज, मैं सब बना लेती हूँ. हमने साथ में खाया बहुत है, लेकिन आपके हाथ का मैं खिलाऊंगी आपको बना के. This is on camera. I want this on the record. Okay, Sonia, we're going to take a break and we're going to come back. और जब हम वापस आएंगे तो हम उस टेबल पे बैठे होंगे, उसकी कुर्सियों पे बैठे होंगे. We've got some table बैठे होंगे. We've got some games coming up. Stay with us. We're here on After Hours with Ushna Shah.
Welcome back, guys. We're here at After Hours with Ushna Shah, and we're gupshupping with my friend Sonia Hussain. Sonia, we're at the table. मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और आपने मुझे बताना है कि what was going through your mind during that. ठीक है? Okay. Let's start with this one. ये क्या है? ये है ऐसी तन्हाई का जो नादिया और समी के साथ किया था, ऐसी तन्हाई का जिसकी हम बात कर रहे थे. जी जी जी. So probably we were shooting. ये बद्र भाई ने शूट किया था ना? बद्र भाई ने डायरेक्ट किया था. हाँ. He's amazing. Very हम nice. किसी- You were so young, little baby. ये back in 2018 ही है. 2018. Very nice. This was a very brave drama that you did. MashaAllah. सोनिया ये कितना पुराना है? ये Were you like 15 in this? ये मैं इसमें नहीं, मैं 16 की हूँ और Oh, कितना फर्क है. मतलब बड़ी हूँ, बहुत बड़ी छोटी नहीं हूँ. बट ये वो चबी वाला है जिसमें उन्होंने ये चबी है? हाँ, उसमें लिपस्टिक लगा कर, मैं तो बहुत ही इसमें बेवकूफ़ और छोटी लगती थी कि उन्होंने लिपस्टिक लगा कर थोड़ा मेकअप करके मुझे बनाने की कोशिश की है. That is so cute, mashallah. अच्छा, I'm gonna go on to another picture. This is special. What was happening here? तो a friend of mine, Oh yes. she was getting ready और फिर सुबह होता ही है कि मैं क्योंकि लेट सोती जी। हूँ तो वो सुबह मैं टाइम से तो दुल्हन आपको calls कर रही थी। I was the bridesmaid. Anxiety में दुल्हन आपको back to back calls कर रही है और रासिक को करियर कह रही है उठाएं सोनिया को भेजें. There's a back story as well क्योंकि रात को मैंने कोई तुम्हें मैसेज किया था और प्रॉब्लम तुमने टाइमली रिप्लाई नहीं किया because you were with your in-laws और तुम्हें इसका ये होता है कि मैंने अच्छा किसी को कहा नहीं तो you start overthinking I it so overthink much. and I had so much anxiety in those days. And there was literally nothing but you were so stressed out. I was so stressed. इसमें मैं बस ये देख रही थी क्या कमी है तो तुमने कहा था कि चूड़ियाँ चाहिए. And you got me my churiya and my flowers. Oh, I love you वो so वाली much. चीज़ थी बहुत This is बहुत amazing. lovely times. And on that note, we have to play a game. No mind games. Just love games. अच्छा, game हमने खेल लिया. Game the way it goes is we have a scenario. ठीक है. So आप एक burger chain में काम करती हैं. ठीक है, कोई भी burger chain. और मैंने order place किया है और गलत order आ गया और मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ और आपने अब कस्टमर सर्विस में आप काम कर रही हैं और आपने मुझे बहलाना है. ओह, एक मिनट, ये भी आपका वर्ड है. सॉरी. ठीक है, ज़बरदस्त. वाह उष्णा वाह क्या वर्ड दिया. Assalamu alaikum, is this the burger place? Yes ma'am, this is. I have a complaint to make. My burger की जो पैटी है वो बहुत squishy है. तो मुझे refund चाहिए या मुझे नया burger चाहिए? मैम पैटी में प्रॉब्लम है लेकिन कोई बाल छाल तो नहीं है ना. बाल नहीं है लेकिन मेरी फुप्पो ने बर्गर खाया और मेरी फुप्पो कह रही हैं कि स्क्विशी बन की वजह से उनका पेट खराब हो गया. ओके मैम, बन स्क्विशी था लेकिन मीट तो बिल्कुल ठीक है ना क्योंकि मीट हमारे पास पेंगुइन का होता है. लेकिन मुझे स्पेसिफिकली फ्लेमिंगो मीट चाहिए था. पेंगुइन मीट हम नहीं खाते, पेंगुइन मीट हराम है, लेकिन फ्लेमिंगो मीट शायद हलाल है. आप इतनी बातें कर रही हैं, आपके बटुए में पैसे हैं जो इतनी बातें करें. बटवा लेकिन जी मेरे बटुए में शायद पैसे ना हो लेकिन मेरा थर्मस सोने के सिक्कों से भरा है. तो ढोल तो आप ऐसे बजा रही हैं जैसे पता नहीं महल हैं आपके. मुझे महल हो ना हो. मैम आपने बाइट तो ले लिया ना, आप चस्का तो आ गया ना आपको. आप किस बात को रिटर्न कर रही हैं आप. पता नहीं इस मीट में क्या था कि मेरी फुप्पो की मूछें इतनी बढ़ गईं कि उनको 4 दफ़ा थ्रेडिंग करवानी पड़ी. ओह गॉड. अच्छा फुप्पो से कहें चलें हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री पैनकेक्स भेज देते हैं. इज दैट ओके? जी, लेकिन पैनकेक्स डिलीवरी में ख़राब हो जाएंगे. क्या आपके डिलीवरी वाले के पास छतरी है क्योंकि बारिश हो रही है? मैम वो मोटरवे से आएगा तो मुझे तो पता ही नहीं मोटरवे आएगा. लाहौर टू इस्लामाबाद आगे भी शायद जाता. तो प्रॉब्लम तो है बट ही विल मैनेज. अबे यार, फ्लेमिंगो बर्गर के साथ एक बीटल जूस मिल्क शेक भी चाहिए था.
वो भी भेज देंगी आप प्लीज मोटरवे पे? हाँ हमारे पास है तो, बट उसमें खुशबू ऑरेंजेस की आती है। आप मुझे ऑरेंज रावियोली दे सकती हैं खाने के साथ? हाँ बट हम रावियोली जो है वो टी पॉट में सर्व करते हैं। आर यू ओके विद दैट? As long as इस टी पॉट पे डायनासोर्स की तस्वीर बनी हो। Why would you want that? Because I want a dinosaur teapot with my orange Was that the word? ravioli. The dinosaur? Yes. Oh my god. I want a teapot with a picture of a dinosaur that comes with an orange ravioli and a flamenco burger with a non-squishy bun in a thermos with Beetlejuice milkshake. Sure, ma'am. Do you want some lemon on the side? Yes, I want some lemon on the side. Okay, thank you. आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। साथ साथ हम आपको गुब्बारे भी भेजेंगे क्योंकि जश्न आज़ादी मुबारक। गुब्बारा। Good one. That was smart. And that's what happens when you work with talented people. Well done, Sonia. Really? Yes, that was actually I a good ruined one. the game. No, you were excellent. I think you were fantastic. I had so much fun. Guys, we're going to come back after this break. More Gupshup with Sonia Hussain. Come back quickly. Hi guys, we're back on After Hours and we're gupshupping with one of my best friends, my closest friend, Sonia Hussain. Sonia, what are you working on these days? So we're working on an action film. Hey. Oh, I know this, but I'll act surprised. Acha. Yeah. Probably reveal भी पहली दफ़ा शो पर ही कर रहे हैं. So it's an action film. बहुत उसमें different काम है. बाकी सारी चीज़ों से हटके है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने एक्शन किया है थोड़ा बहुत। Yeah, you played the boxer. The boxer one. लेकिन उसमें उस तरह का एक्शन नहीं था ना कि आप किसी को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फाइटर वाला वो नहीं था। तो उसमें प्रॉपर एक फाइटर है। की अपनी बहुत ज़्यादा स्टंट्स है। ट्रेनिंग की उसकी फुल। उष्णा इतने ज़्यादा स्टंट्स हैं कि मैं लिटरली मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया, मैं 2 महीने तक उठ नहीं सकी थी। क्या? इतना ज़्यादा क्योंकि जब वो ब्लास्ट वाले सीन्स हम That's why you were unwell. या तो अब शुक्र है चलो हील हो रहा है। So are you revealing director writer कौन है या अभी नहीं? अभी वेट करें। नहीं अभी करेंगे कास्ट रिवील पूरा। अभी नहीं कर रहे। चलो, but at least we know what you're doing. Who's your like mentor? Like not mentor, but like your idol. Like acting wise? Like acting wise. Yeah. Acting wise, I really like Tabu. Oh, she is amazing. Yes. She's incredible. तब्बू को उनको आप किसी भी कैरेक्टर में आप अंधाधुन देखी? अंधाधुन उफ she so was outstanding. We stand Tabu up in here. We love Tabu. और here I love do we love Irsa here? Ghazal. Irsa Ghazal का नाम सुना हुआ है मैंने. I love her. Oh अच्छा, do you know her? Yes, Have you she's my ever worked with sister. She is incredible, and Irsa is the reason we are friends. Do you know this? No. आपको नहीं पता. She was like, मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है, and she's very sweet, और ये बहुत अच्छी artist है. And I remember going up to you and being like, you're so beautiful. And Ushna, I remember that meeting. और मैं इस तरह थी और कोई पीछे से ना इस तरह करता है, मैं देखती हूँ कि I love your acting. You're so beautiful, you're so pretty. और मैं बस देख रही हूँ इतनी प्यारी लड़की मेरी तारीफ कर रही है। Oh my God, she's so secure, माशाल्लाह. मैंने कभी इस तरह के कोई आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ये I think yeah, we're very secure with ourselves, and you are, and my sister adores you, and she is an incredible actress. I think Mehwish और ये वाली जो actress है Mehwish, ना, Sabah, Kubra, Sajal as well, and Kubra of course. I think हमारी talented industry है माशाल्लाह. We're doing well. Mature पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे हिस्से का जो काम है वो हम ही कर रहे हैं. हम That's true. ना हमें किसी और के हिस्से का काम मिलेगा ना हमारा वो कर सकते हैं. I think that's so true. Yeah. Tell me something. कभी जिंदगी में, क्योंकि शो का नाम है आफ्टर आवर्स, so आफ्टर आवर्स में हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं, डरावनी कहानियाँ, और ये मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है. सो आप मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में किसी सेट पे या कहीं भी कोई डरावना किस्सा हुआ है, कोई अनएक्सप्लेन्ड? पता है ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही मुझे लगता है कि जब भी आप, अब मैं कह नहीं रही वो, जब भी आप इसकी बात करते हैं, नाम करने लग जाते हैं ना, वो आ जाते हैं. और भी लंबी ड्राइव है, घर हम दूर है और हम बहुत
उस वाली जगह पर है। सुनसान एरिया में। बट आई रिमेम्बर हम एक दफ़ा डिस्कस कर रहे थे, मैं एक शो करती हूँ, गज़ल शो करती हूँ हवेली पे, लाहौर जी, में जी। पुरानी हवेली पे। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे शो के बाद, और मेरी सारी दोस्तें वोस्तें आके सब बैठी हुई थी, सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे, तो हम इन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। और फिर मेरी किसी वन ऑफ आवर फ्रेंड उसने हमें कहा कि सुनो, इतनी बातें नहीं करते, वरना उनको ये होता है कि अच्छा मेरा जिक्र हो रहा है तो मैं चलो इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनता हूँ। और वो अचानक से ना बहुत ही, वो हमारी जो हम बॉन्ड फायर कर रहे थे वो यू ना ये कहाँ बुझने था? लगी हवेली पे। तो उसके बाद फिर वो रात को हम सब चले गए रूम के अंदर, उसके बाद एकदम से लाइट चली गई पूरी हवेली की। अब थैंक गॉड कि उस वक्त मैंने अपनी बहन को अपने साथ चला लिया, तो किसी ने मेरा पाँव पकड़ा है, नहीं, और आई स्वेयर किसी ने मेरा पाँव पकड़ा है और पाँव पकड़ के यूँ खींचा है मुझे, और मैं अपने पूरे ना जब पिलो से बिल्कुल नीचे इस तरह से मुझे ड्रैग किया है नीचे मैंने, और मैं सब दूसरे पाँव से ना इस तरह कर रही हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। शुक्र है मेरी बहन सामने थी, और मैं जब इसको यूँ किया ना करके मैं नीचे गिरती हूँ बैठ के, तो मेरी बहन कहती है क्या हुआ सोनिया, क्या हुआ क्या हुआ, तो उस तरह से टॉर्च मुझ पे करने लगी। मैंने कहा कौन है, तो कैसा कहती है मैं हूँ सना, मैं हूँ। ऑफ इट वाज, did she do it? मैं नहीं, नो 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 No, someone else pulled you. She was कोई sleeping. और सोर्स थी, कोई और फोर्स थी। 100%. हाँ, लेकिन सना तो शी वाज एक्सपेक्टिंग बैक देन, तो वो तो शुक्र है मैंने उसको नहीं मार दिया। लेकिन मुझे इतना डर। I have a story for you. This is हम वैसे हम लोग भी हमें सबमिट करते हैं, हम ऑनलाइन भी ढूंढते हैं, and we read them out because मैं असली वाक़ये कितने सुना। Oh, is it like a horror story? It's a horror story. What are you doing? I know, Krishna? right? ये बहुत गलत टाइम है। A father went to say goodnight to his 7-year-old son, knowing very well that if he didn't, his son would have trouble sleeping. It was a nightly routine between them. वो dimly lit room में आए जहाँ उनका बेटा ब्लैंकेट के नीचे वेट कर रहा था कि मेरे अब्बा मुझे गुड नाइट बोलेंगे. With the first glance, the father could tell there was something unusual about his son tonight. लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि unusual है क्या बेटे के बारे में. He looked the same, but he had a grin that drew from ear to ear. So बेटा वैसे ही था लेकिन smile कर रहा था इस तरह से. Are you okay, buddy? The father asked. The son nodded, still with the grin, before saying, Daddy, check for the monsters under my bed. The father laughed a bit before getting on his knees to check, only to satisfy his son. There under the bed, pale and terrified, was his son, his real son, and he whispered, Daddy, there's someone on my bed. And that was it. We're not going together. Do you believe in all this? You know, some things have happened that I feel like a little bit, थोड़ा paranormal activity में है मेरा थोड़ा बहुत. Find it मैं very इतने लोगों को superficial. जानती हूँ कि चुड़ैलों पे भरोसा हो गया. That was deep. Sorry, I'm just kidding. But नहीं, हाँ, जन्नत तो ये ना हकीकत है, जन्नत सब तो लिखे हुए हैं. कुरान शरीफ में भी जिक्र है। अच्छा, आपकी उर्दू बहुत खूबसूरत है, बहुत खालिस है. अच्छा, आपको नाज भी है इस बात पे. इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. आप एक भी लफ्ज अंग्रेजी का नहीं कह सकती, तो आप टीवी भी नहीं कह सकती. आपने उर्दू में बात करनी, आपने एक भी लफ्ज अंग्रेजी का इस्तेमाल किया तो आप आउट हो गए. सोनिया मुझे बताएं, आपने कि आपको भी उर्दू कहनी। ठीक है, आपने हाल ही में सोते वक्त आपको कोई ख्वाब आया था, आप अपने एक ख्वाब के बारे में बताएं और बहुत तफसीलात के साथ बताएं, लेकिन सिर्फ उर्दू में. यार ख्वाब तो मुझे नहीं पता, ख्वाब क्या आया था मुझे लास्ट? कोई रोशन ख्वाब, कोई डरावना ख्वाब, कोई रूहानी ख्वाब? नहीं, मुझे याद नहीं है सच में। कोई वाकया? अच्छा, कोई किस्सा? वाकया से तो आज जब आप तैयार हो रही थी आने के लिए, तो आप का तो मैं काम पे गई। सुबह उठी, सुबह उठी,
आपने दांत साफ किए, नहाई, गुस्ल किया? जी गुस्ल काम पे गई, तैयार हुई। मैं सेफ जोन में खेल रही हूँ। सेफ नहीं कह नहीं ये तो कहानी ये तो का कहानी हिस्सा से नहीं बाहर। है ना। अच्छा, अच्छा, तैयार हुई, फिर हमने अपने मुसद्दिक फिर हमने अपने आपकी तो उर्दू बहुत खालिस है। सीन करवाए। सीन को क्या कहेंगे मुसद्दिक? मंजिल करवाए, हाँ? मंजिल कशी की। रियली सीन उर्दू में सीन नहीं होता, मंजिल कशी हो, मंजर कशी करवाई। अच्छा, उर्दू में सीन शीन होता है। ओह हाँ, सीन तो क्या मतलब मैं आउट हो गई नहीं? हाँ जी, अब अच्छा, ओके। ओह माय गॉड, ये तो कितना मुश्किल है ना। हम डायलॉग्स बोलते हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम Really? कुछ और दुनिया में हैं। नहीं, लेकिन और आपकी तो उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कितना उर्दू मुश्किल है। अच्छी है, लेकिन ये क्योंकि ये एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन की मंजर कशी और ये मंजर कशी, exactly, और हालांकि- इतनी हसीन नहीं, हालांकि ज़बान है। हम लोग बहुत आज भी हम डिस्कस कर रहे थे, तजब्जुब एक तजब्जुब, एक वर्ड है, कश्मकश, कश्मकश, तजल्लुल, इस तरह के वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हम नहीं इस्तेमाल करते। जो हम नहीं और ये इस्तेमाल करते हैं, कितनी बड़ी इट्स सो ट्रैजिक, तशक्कुर। क्योंकि कितनी खूबसूरत ज़बान है हमारी, और मर रही है। और लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आती। लेकिन इस तरह किताबें के word- पढ़नी मुझे ये चाहिए। है कि मुझे ये नहीं है कि कोई वर्ड है तो मुझे समझ नहीं आएगा, बट हाँ, ये पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन अब उतना नहीं है। नहीं है हाँ, कि हर चीज ठीक। इंग्लिश हो गई क्या है आप ना। बड़े तशक्कुर के साथ तशक्कुर के चलो सोनिया, ऑन दैट नोट अ लिटिल चैट विद आवर ऑडियंस। गाइस, आपने आज देखा है कि जब एक शो पे गॉसिप से बाहर गुफ्तगू होती है, बात होती है, तो कितनी इंसाइटफुल बात होती है और कितने मज़े की बात होती है। और कई दफ़ा जब हम अपने सेलिब्रिटीज़ को उस गॉसिप की कश्मकश में नहीं डालते, कश्मकश सही बोला मैंने? नहीं, हाँ, गॉसिप के जाल में नहीं हाँ, डालते, ठीक है। या जो भी छोटी बातों में नहीं हम डालते, तो उनकी एक साइड नज़र आती है जो अक्सर शोज़ में नहीं नज़र आती, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। सोनिया तो हर शो में इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज सो लवली टू हैव कॉन्वर्सेशंस दैट गो बियॉन्ड द नॉर्म। उनकी एक साइड जानना जो अक्सर नहीं नज़र आती। इसी तरह अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी गॉसिप से बाहर आ जाएं, तो आपको अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में वो बातें नज़र आएंगी जो आपने पहले शायद नहीं नोट की, जिन पे गौर आपने पहले नहीं किया। Gossip really is a small thing. It can be fun if it's handled in small doses, but for the bigger picture and for greater minds, it's really important to transcend beyond it. What do you think, Sonia? absolutely, Do you agree? absolutely. We gossip sometimes, but mostly we don't. I feel like we have intelligent conversations. Yeah, we don't really gossip. I think We don't gossip. हाँ, Once or twice maybe we have, जो हाँ, हमारी जिंदगी को pertain हम I करते think हो। वो अपने एक्सपीरियंस, गलत अपने बुरे experiences एक्सपीरियंसेस से। शेयर करते हैं। हाँ, That's a different लेकिन thing. I don't think हमने कभी randomly किसी के बारे में we gossip we किया। actually don't care रुशना कौन क्या कर रहा है. We literally Absolutely. don't care. और कितना मजा आता है इस बात पे, है ना? हाँ. I really respect that about us I and mean, about you. हमारी अपनी प्लेट में इतना कुछ है करने को और उसको संभाला नहीं जा रहा, हम क्या दूसरे की जिंदगी में I इंटरफेयर करें. absolutely agree. I love you for being on my show. I love you I genuinely. love you. Thank you Love so for much. having me. Thank you so much for coming. I know बहुत late है और आप मेरे लिए आई हैं. No, it God was bless so you. much fun. लगा ही Really? मेरी शो पर आए. I'm so happy to hear. Love you so Love you much. too. See you guys next time here on After Hours with me, Ushna Shah.